Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Beta, each and everyone, I'm saying this. Turn on your videos as your video have to be turned on as of this mandatory for each and every student. अगर किसी भी बच्चे का अभी वीडियो ऑफ दिखता है तो हम उससे वार्निंग नहीं देंगे via chat. हम डायरेक्ट उसे रिमूव Am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Okay. Okay. Now, students, the very important thing that we are doing today is new trends in publishing. This is a very important but very interesting thing. I'll be very grateful अगर आपसे मैंने अभी request की थी अपने pens और papers ready रखें. I think 4-5 मिनट we have already lost because of some network error. I hope मेरी अब आवाज आपको आ रही है. आप में से कोई सर एक आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. नहीं, मेरे को तो बड़ी अच्छी से आ रही है आपकी आवाज. I can get your voice. वॉल्यूम बढ़ाओ. पता नहीं. Am I audible to Hello. you once again? Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है आपको? I hope I'm audible to all of you. एक Yes, sir. Okay. earphones Maybe connect कर there somebody has a problem. Now, very important thing. What are we studying today? आज का topic है new trends in publishing. I'm very sure कि आपने पिछले 2 महीने में देखा होगा कैसे COVID-19 has redefined the concept of newspapers. In fact, घरों पे अखबारें आ ही नहीं रही थी. हम सबको अखबार हमारे स्मार्टफोन में मिल रहा था. But what is the future of digital platforms? What is the future of digital editions? उसको हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे. I'll start with the very first slide at which says, what are newspapers today? Do you still have a newspaper delivered to your home? Do you buy one on the way to work? Or are you like an increasing number of people around the world who get their news from digital edition of newspapers? Today, the internet
digital publishing technologies and changes in global media habits have resulted in dramatic changes in how newspapers are published and distributed, how news is gathered and reported, how newspapers make money, and even how much people trust the news they read. चार बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज मैंने पहली स्लाइड में आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से न्यूज इस तरह से रीडिफाइन हुई है, ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं जिसके अंदर चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं. हाउ न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. नंबर 2, हाउ न्यूज इज गैदर्ड एंड रिपोर्टेड. आई डोंट नो आप में से कितनों ने कभी CNN पे देखा है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाते हुए कि कैसे वो ट्रंप के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाती है, और डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रेस ब्रीफिंग्स में ओपनली कहता है that CNN is not real news, it is fake news. So how newspapers make money and even how much people trust the news they read. न्यूज के अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रस्टवर्दीनेस का. अगर आप रोज देखें कुछ न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बड़ी डिप्रेसिंग है. जैसे इंडिया इज गोइंग टू बिकम द कोविड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. जिस स्पीड से प्रोग्रेशन हो रहा है कोविड का, maybe we will overtake countries like Spain, countries like France, Germany, even to some extent even US. So is it right? Is it wrong? Is this news to be trusted? Do we only see the negative part of the news or the positive part? वह अपने में एक बहुत बड़ा इशू. Once again, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, may I humbly request you to please keep a paper and pen in your hand. The slides will be made available to you. And what we'll be studying today is something known as news trends in publications, जिसके अंदर मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक प्रीलिम स्लाइड पढ़ी है, और अब मैं आपको सबसे पहली चीज, सबसे पहला ट्रेंड बता रहा हूं, और वो है द चेंजिंग फॉर्मेट ट्रेंड. किस तरह से न्यूज का फॉर्मेट का ट्रेंड पिछले कई सालों में बदला है और आने वाले टाइम्स में बदलेगा. लेट अस लुक एट द पास्ट. In the mid-80s, mid-90s, newspaper circulation in the world, including USA, reached something like 63 million papers distributed every weekday. But by 2016, the newspaper distribution had fallen by under 35 million. 1980 और 90 के दशकों में जिस हिसाब से अखबारें छपती थी, जिस हिसाब से अखबारें लोग पढ़ते थे, उस हिसाब से आज लोग आधी अखबारें भी नहीं पढ़ रहे. So what happened? Well, students, a very important and very true thing happened, and that was the internet. The internet happened. As news became increasingly available online and through a wide range of sources, newspaper readers took to their tablets, phones, and computers to access what previously was only available in the printed newspaper. इसका एक बहुत अच्छा और लाइव एग्जांपल है कि बहुत से लोग न्यूज को थ्रू फेसबुक, थ्रू टिकटॉक, थ्रू डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म चैनल्स से ज्यादा समझ में आती है उनको न्यूज, और प्रिंट चैनल से नहीं आती, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे. While accurate online newspaper readership is challenging to measure, it is estimated that in 2016 there were 11.7 million unique monthly visitors to the websites in the top worldwide daily newspapers. यानी कि 2016 से लेकर 2020 तक का अगर हम डेटा देखें तो वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 11.7 मिलियन, जो कि 1.25 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं, ऊपर विजिटर्स मंथली वेबसाइट्स के थ्रू न्यूज को एक्सेस करते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहला ट्रेंड ऑफ पब्लिकेशन क्या हुआ, मुझे लगता नहीं इसको समझाना ज्यादा मुश्किल है या ज्यादा टफ है. जो सबसे पहला ट्रेंड है वो है the upcoming and the long life of digital news platform. देखिए, डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म कोई फ्लूक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है. आज ये धीरे 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 एक आदत बनता जा रहा है. जिससे जब शुरू में अमेज़न आया था, फ्लिपकार्ट आया था, तो मैंने ही नहीं कई सारे और यूनिवर्सिटीज में मैंने लोगों को सुना और सबने बोला कि ये तो एक ऑनगोइंग फैड है. कोई इंसान भला बिना छुए
बिना टच किए, बिना फील किए कोई सामान लेता है? नहीं जी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी, यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट ने कह दिया। पर कोविड-19 के पैंडेमिक ने हमें प्रूव कर दिया है that yes, people are buying things without touching, tasting and smelling. चाहे वो एक आटा 10 किलो का आटे का पैकेट हो, चाहे वो नमक की थैली हो, चाहे वो 42 कॉलर साइज की शर्ट हो, चाहे वो 26 वेस्ट साइड की आपकी कोई फॉर्मल जीन्स हो, और तो और स्टूडेंट्स, one of the biggest trends during COVID was of selling online clothes and apparel rather than of online groceries. पिछले 3 महीने की ट्रेंड ने क्या दिखा दिया है कि लोग ग्रोसरी से ज्यादा कपड़े भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। शायद आपको लग रहा है मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, मैं टॉपिक से नहीं भटक रहा, मैं सिर्फ टॉपिक को सब्सटैंशिएट कर रहा हूँ कि न्यूज की ही बात क्यों करें, किसी भी और चीज की बात करें, हर चीज में आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और तो और शायद आपको ये जोक लगे, पर वो बीच में अखबार में आया था, जिन्होंने पढ़ा है कि कुछ लोगों ने ई शादी भी कर ली, कि बहुत समय से उनकी शादी नहीं हो रही थी। उन्होंने बोला अब कौन कोविड के चक्कर में वेट करे, so there has been e-marriage has been registered in America, and we had a couple in Delhi and Chennai also tying their knot through e-pheras and e-mantras, and well, I don't know whether this social distancing marriage is going to stay there forever or not. So once again, the first trend has been the changing format, that is, people have taken this not as a habit or a policy, but as a trending lifestyle of using the digital platform to watch news and also to air their news. अब पता नहीं आप में से कितनों ने ये वीडियोस देखे होंगे कि कोई हॉस्पिटल गया और उसको हॉस्पिटल में ठीक से सर्विस नहीं मिली, तो उसने उस हॉस्पिटल का वीडियो खींचकर और अपना वीडियो उसी वक्त ऑनलाइन वायरल डाल दिया। पता लगा उसको 2000, 20,000, 50,000 हिट्स मिल गए, सरकार तक सकते में आ गई और सरकार ने भी उस पेशेंट को दोबारा से भर्ती कर लिया। कुछ इस टाइप के केसेस हुए हैं। तो पहला ट्रेंड है पब्लिशिंग में, न्यू ट्रेंड इन पब्लिकेशंस में है द चेंजिंग फॉर्मेट। नाउ ट्रेंड नंबर 2 इज चेंजिंग सोर्सेस। इस ट्रेंड को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, हम सब बोलते हैं कि the source of information is more important than information itself. ध्यान से समझिए, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो 3 बार ही बोलूंगा। The source of information is much more important than the information itself. किसके मुख से क्या निकला, वह बहुत बड़ी बात है। अगर आज सत्ता के अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में चाइना में, और हमारे आर्मी चीफ्स कुछ और बोलते हैं, तो ये अपने में एक बहुत बड़ा सोर्स है। चेंजिंग सोर्सेस, लेट मी फर्स्ट रीड द हाफ पार्ट ऑफ द स्लाइड, और तब आपको मोर और लेस ये इशू क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं इसको आपको और अच्छे से क्लियर करूँ। Slide number 2, changing sources, says the growth of digital newspapers does not make up for the gap between digital growth and print declines. So where are readers turning? More than 2/3 of the people of Europe and other Latin American countries are today turning to social media websites such as Twitter, YouTube, Snapchat, and through Google searches. अखबार से भी बड़ा आज स्नैपचैट हो गया है। एक जो वैल्यूएशन कंपनी की थी, उससे 20 गुना ज्यादा वैल्यूएशन फेसबुक की हुई जब उसने व्हाट्सएप को खरीद लिया, जब उसने हमारे इंडियन मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर 1.7 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। 1.7 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। इस फिगर के अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई झूठ नहीं है, आप चाहे तो इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
The use of social media is not just among the youth. More than half of the world over the age of 50 reports using social media for news. Mobile devices like smartphones and tablets are quickly becoming the preferred method for getting news online, enabling consumers of news to access their favorite sources anywhere, anytime. The usage is expected to only continue to grow, and over 70% of global internet consumption is not coming from laptops, but it is coming from मोबाइल डिवाइसेस. तो यानी कि कुछ हद तक अगर मैं ये भी बोलूं कि आने वाले टाइम्स में शायद लैपटॉप का वही हाल होगा जो पेजर का हुआ फोन के आने से, तो वो शायद गलत बात नहीं, क्योंकि most of the people today are accessing internet not through a laptop but through a mobile device. And I'm very sure जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आजकल पढ़ते हैं, now we have got mobile devices which are multiple usage devices. कि एक डिवाइस के साथ आप पूरा नेटवर्क बनाकर आप प्रॉपर वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल आई वुड से कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, and that too just by paying the cost of internet services, nothing more. So the source जो मैंने सेकंड स्लाइड पढ़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट के अंदर people are trusting not the site of the news but they are trusting more the social media websites. अब जैसे कि ट्विटर के हैंडल पर लिखा हुआ कमेंट और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हुई स्टेटमेंट में से ज्यादा अहमियत किसकी है? ट्विटर के हैंडल पर दिए हुए कमेंट. अभी आप देखते होंगे कई बार तो अखबार तक में लिखा होता है that PM Modi tweets about so and so, या राहुल गांधी tweets about so and so, या Donald Trump tweets against the use of a particular drug of COVID, etc., etc. So what are you writing is not something that is of relevance. What are you tweeting that has become of relevance. इसीलिए आज आप देखिए platforms like YouTube, Snapchat, Google search, Twitter, they have exceeded in their valuation as compared to print media. जो एक हिंदुस्तान टाइम्स जो कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले का न्यूज़पेपर है, सन 1937 आजादी से भी 10 साल पहले जब ये अखबार छपना शुरू हुआ, अगर उसकी आज वैल्यूएशन की जाए और आज ट्विटर की वैल्यूएशन की जाए तो दोनों की वैल्यूएशन में कंपैरिजन तो बड़े दूर की बात है, आसपास भी आप उनकी वैल्यूएशन को नहीं रख सकते. Again, trend number 2 was changing sources. I'm coming to trend number 3 because trend number 3 is changing dynamics of demography. ध्यान से समझो. Changing dynamics of demography. Demography is the study of population. Demography is the study of people. कौन सी population है जो सोशल नेटवर्किंग पे जाती है? कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ये फुल टाइम जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कुछ ना कुछ करने को हो तो उनको स्मार्टफोन पकड़ा दो, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. खैर, let us first read this slide and then I will explain it. It is all about changing demographics या changing age group और population of people. अगर आप demographics वर्ड समझ नहीं आता. I'm reading the third slide once again. मैं हर बारी क्लास में ये चीज बार-बार रिपीट करता हूँ, चाहे आपको बुरा लगे. All the slides will be available to you through Yan. Your understanding is more important rather than your hearing. तो यहाँ पर आप समझिए ज्यादा, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल स्लाइड शो आपको हमसे मिल जाए. I'm repeating slide number 3. I'm reading for the first time slide number 3. Changing demographics, that is study of population. It says, traditionally, print newspaper readers have tended to be older, more affluent, and more educated than non-newspaper readers. That remains true throughout the globe as education and income levels have dramatically changed. And even when we are looking at the use of digital
न्यूज सोर्सेस। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी चीज, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, उसके अंदर कोई न्यूज रीडिंग पब्लिकेशन की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। एक बहुत बड़ी चीज न्यूज इस सो कॉल्ड स्मार्टफोन ने करी, इस सो कॉल्ड आई वुड से ट्विटर ने करी, इस सो कॉल्ड फेसबुक ने करी, और वे क्या, इंसान को उसके राइट्स की अवेयरनेस हो। गांव में बैठे हुए भी आज एक गरीब किसान को ये पता है कि वो जिस भाव के ऊपर एक टाइम पर अनाज बेचता था, उस भाव से कितने गुना ज्यादा पर वही अनाज या वही गेहूं या वही जवार या वही बाजरा एक एंड कस्टमर को एक बड़े एफ्लुएंट टाउन में पहुंचता है। स्टूडेंट्स, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू इज digital platform has given ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एक ऐसी चीज है न्यूज के अंदर कि जहां पर एक अखबार ने कोई गलत न्यूज रिपोर्ट की, फटाक से कोई और प्लेटफॉर्म उसको करेक्ट कर देगा, कोई तीसरा सिटीजन रिपोर्टर बनकर उसका वीडियो बनाकर डाल देगा, कोई चौथा उसका एक अच्छा बुरा या गंदा पक्ष को लोगों के सामने रखेगा। सो this is all being because of increasing level of education and incomes of the people. Globally लोगों में एजुकेशन बढ़ी है। एजुकेशन का मतलब हम बीए पास कोर्स या किसी कॉलेज की डिग्री से नहीं, एजुकेशन का मतलब हम करते हैं अवेयरनेस से, फाइंडिंग आउट what exactly is happening not only in your area, your state, your country, but also what is happening globally. जैसे कि आज गूगल ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वह अपनी दिल्ली के पास गुड़गांव में रिटेल ऑफिस को सरेंडर कर रहा है और उसको वापस सेल पर लगा रहा है, क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉइज को परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। इट इज नॉट इंटरेस्टेड in recording the attendance of its employees, it is interested in getting the work done. अगर घर पर ही बैठकर कोई अच्छे से अपना काम कर लेगा तो दफ्तर का रेंट देना, बिजली का बिल बचाना, ओवरहेड्स को क्यों खर्चा किया जाए, उसकी क्यों नहीं बचत की जाए। लाखों करोड़ों रुपए की रिटेल की स्पेस है, उसको बेचकर उसको पैसे का इस्तेमाल किया जाए। What am I trying to tell you? एजुकेशन एंड इनकम लेवल्स के इंक्रीज होने से लोगों के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, और ज्यादातर not very old but affluent people are today using the social media platforms. With the advent of digital news media, and digital news consumption is preferred worldwide by younger readers. Now, thanks to strict cyber laws, even digital news can be authenticated and at the same time vilified. इसका मतलब क्या है? एक टाइम था कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत डरते थे, पेमेंट देने से डरते थे, देखने से डरते थे कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं हमारा पैसा तो नहीं ले जाएगा। पर आज की डेट के अंदर साइबर लॉज, और तो और इंडिया तक जैसे कंट्री में साइबर लॉज आज की डेट में बड़े सख्त हैं। दे आर, ये आई थिंक somebody is commenting, आशीष श्रीवास्तव कैमरा इज नॉट वर्किंग और समथिंग। प्लीज आप कोशिश कीजिए कि क्लास के दौरान कमेंट्स ना करें। आई होप माय वॉइस इज बीइंग क्लियर। जिनको मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं है वो मुश्किल वाली बात है, क्योंकि कैमरा चाहे काम करे ना करे बट मैसेज शुड। सॉरी। सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। अभी मैं फर्स्ट सेशन को खत्म करने के बाद सेकंड सेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कराने वाला हूँ। फाइनेंशियल मॉडल्स ऑफ पब्लिकेशंस, किस तरह से इनका फाइनेंशियल मॉडल क्या है, किस फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर डिजिटल न्यूज कंटेंट करता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा हिंट देता हूँ। आपको भी 10 मिनट का जो ब्रेक मिलेगा उसमें सोचना कि व्हाट्सएप को $19 बिलियन पर फेसबुक ने खरीदा, पर व्हाट्सएप की कमाई क्या है, किस चीज से वो कमाता है। तो व्हाट्सएप की इतनी बड़ी वैल्यूएशन $19 बिलियन कैसे की फेसबुक ने, किस लॉजिक पर की, मैं वो लॉजिक भी आपको समझाऊंगा और फाइनेंशियल मॉडल और भी आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। हाउएवर अभी जो मैंने किया है मैं जल्दी से बता रहा हूँ, जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ। वो है कि न्यूज़पेपर्स टुडे कॉन्सेप्ट बदल गया है। लोग
डिजिटल एडिशंस की तरफ चले गए हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ड्यू टू द कोविड एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स पिछले 2 महीने में 3 महीने में जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिसको चाहे आप अमेजोन कह लो, चाहे फ्लिपकार्ट कह लो, चाहे ग्रोसरीज का कह लो, चाहे फेसबुक कह लो, उसके ऊपर ट्रैफिक की वॉल्यूम नियरली 4 to 5 टाइम्स की ग्रोथ हुई। पहला मेरा स्लाइड जो मैंने कराई थी आपको न्यूज़पेपर्स के ट्रेंड्स के ऊपर, वो थी ऑन चेंजिंग फॉर्मेट्स, और मैंने आपको बताया कैसे the format of print has changed into internet and how today people are using tablets, phones and computers to access the newspaper। ये बड़ा आसान सा एक पॉइंट था। तो दूसरा पॉइंट मैंने कवर किया वो था चेंजिंग सोर्सेस। न्यूज किस सोर्स से आ रही है, चाहे आपको अच्छा लगे या चाहे बुरा लगे, पर सच्चाई ये है आज की डेट के अंदर रीडर्स न्यूज चैनल्स के ऊपर ट्यून कम कर रहे हैं और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ज्यादा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि व्हाट यू राइट इन अ पेपर, व्हाट यू कमेंट इन फ्रंट ऑफ द प्रेस, दैट टुडे इज नॉट दैट मच वैल्यूड, बट यस what you speak or write on Twitter, what you write on Facebook, what you write with a hashtag on a Instagram handle or a photo handle, that tends to make you an overnight celebrity or a success। So once again, changing sources का मतलब आज की डेट के अंदर न्यूज का ट्रेंड इज थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे मैंने आपको ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट एंड गूगल सर्चेस के कई सारे एग्जांपल्स। तीसरी स्लाइड जो मैंने आज कवर करी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है चेंजिंग डेमोग्राफिक्स। पिछले 20-25 सालों में एक बहुत बड़ी चीज बढ़ी है जो मैंने बताया है, और वो है लिटरेसी लेवल एंड इनकम लेवल्स। वो जमाने गए जब लोग कहते थे कि मजदूर बंधुआ मजदूर है, आज मजदूर को भी एक मिनिमम मजदूरी मिलती है, मिनिमम वेजेस एक्ट है। ऐसा नहीं कि जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिशियन आता है या दूध वाला आता है वो बहुत ही गया बीता है, आज वो भी ऊपर वाले की दुआ से कुछ अच्छे पैसे कमा लेता है। तो व्हाट हैज हैपेंड इज चेंजिंग डेमोग्राफिक्स का मतलब दैट देयर हैज बीन मोर थ्रस्ट ऑन ग्लोबल एजुकेशन एंड इनकम लेवल्स। अब जैसे मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप सबने सुना होगा कंट्री डिलाइट के नाम से कंपनी है, टेक्निकली दूध सप्लाई करती है। आपने सुना होगा कई सारी वेबसाइट्स है जो घर पे मिल्क सप्लाई करती है। कहने को तो ये दूध वाले का काम है, पर बिग आईएम्स, हार्वर्ड एजुकेटेड लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं इन स्टार्टअप्स के। एक चाय की दुकान के नाम से कॉन्सेप्ट को सोचा गया और चायोस के नाम से 400 करोड़ की फंडिंग से दुकानें खोली गई। आज भी चायोस होम डिलीवरी कर रहा है ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, चेंजिंग डेमोग्राफिक्स का मतलब अमीर और गरीब के अंदर का जो एक सो कॉल्ड डिस्टेंस था काफी हद तक और काफी तेजी से कम हुआ है। एंड ड्यू टू दीज चेंजेस ऑफ एजुकेशन एंड इनकम लेवल, worldwide young generation people and not very affluent people are preferring to read digital media। मैंने आपको एक चीज और बताई जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, और वो थी the biggest part of digital media today is that it is transparent। there are transparency law, हिंदी में इसको कहते हैं पारदर्शिता। एक साइट पर कुछ गलत लिखने का, गलत करने का मतलब आज ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में साइबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन उस साइट को बैन कर देता है, उसको डीरेगुलेट कर देता है, उसको क्या कहते हैं इसके ऊपर it can be disabled। So today people are trusting to buy from Amazon even a laptop worth 40,000। बीच में जब स्मॉग आया था आज से कुछ महीने पहले पिछली सर्दियों में, तो सबसे ज्यादा अमेजन और फ्लिपकार्ट ने एयर प्यूरिफायर्स बेचे थे जो कि 8,000-10,000 रुपए का सामान। सो द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स टॉक्स अबाउट हाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म इज नाउ not only a preferred platform but also a secured platform। I repeat, digital platforms of not only news or buying and selling are not only today preferred platforms but they are also secured platforms। Students,
In the next session of the class, I would like to talk about a very important trend, and that is the financial model of newspapers. What are the financial models? चाहूँ तो मैं उसको अभी भी शुरू कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी 4 या 5 मिनट हैं. But I would like to now keep quiet for the last 4-5 minutes, and I will be very grateful, very happy if you have any questions to ask. Is there anybody who wants to ask anything, or shall I give you some idea of the financial model of the newspapers? या जो आज का सर मेरा थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है. हाँ जी बोलिए, प्लीज पूछिए. ऑफ द टॉपिक. पूछिए. Like if you are making a film or a web series, then what are the things in financial condition that you should keep in mind, that you should not suffer from the loss and not even profit. अगर profit हुआ तो ठीक है, वरना loss ना हो. ऐसा कुछ, मतलब you understanding me? अगर जो आपका सवाल थोड़ा सा हास्यप्रद इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि अगर ये गुर मुझे आता तो मैं यहाँ पर बैठकर आप एक लेक्चर ना दे रहा होता, मैं कोई नेटफ्लिक्स वगैरह का वाइस प्रेसिडेंट होता और कुछ बना रहा होता. तो ऐसा जो आप कह रहे हो कि ये आपका थोड़ा सा टॉपिक से, हालांकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा. Okay sir. What do we talk about when we talk about online series या online soap opera कह लो या online extended movie कह लो, या आजकल एक ऑनलाइन सीरीज बड़ी पॉपुलर है जो चल रही है सुष्मिता सेन की आर्या के नाम से, या एक योर ऑनर के नाम से जो कि हॉटस्टार और वूट वगैरह पर आ रही है. Yes. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. अगर आपने मेरी पिछली 2 क्लासेस अटेंड की हो तो इन सब का फुल प्रूफ मनी मेकिंग मॉडल को मैं एक ही वर्ड में डिफाइन करूंगा, और वो है अ वेरी पावरफुल स्क्रिप्ट बैक्ड बाय स्टेलर परफॉर्मेंसेस. जो स्क्रिप्ट होती है वह एक किसी भी, देखिए न्यूज का जान सोर्स है, मूवी की जान उसका स्क्रिप्ट है. उसको आप किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो वह अपने में ही एक कला है. पर अगर स्क्रिप्ट में ही मजबूती नहीं, अगर आपकी कहानी के अंदर ही कोई पेचीदा या कोई इंसान को उत्सुक करने के लिए, रोक रखने के लिए, 6-7 घंटे तक उसको देखने के लिए मजबूर करने वाला स्रोत नहीं है, तो I doubt whether any revenue can happen. अब इसके अलावा मैं आपको और कोई लंबा इसके ऊपर मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको इस डाउट को नहीं क्लियर कर पाऊंगा. जितना कर सकता था मैंने कर दिया है. नहीं सर, जानना रहता था. Can now someone else ask anything if anyone else is interested, because we can be disconnected anytime. हमारा ऑफिशियल टाइम किसी भी टाइम डिस्कनेक्ट हो सकता है. नहीं तो मैं आपको चेंजिंग फाइनेंशियल मॉडल्स वाले ट्रेंड को थोड़ा सा शुरू कर देता हूँ. आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो मैं 4th ट्रेंड को शुरू करता हूँ. देखिए फाइनेंशियल मॉडल, आप सबको एक गाड़ी याद होगी, सियालो, या नहीं तो मटीज के नाम से वो गाड़ी आई थी. जब इंडिया के अंदर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और लिबरलाइजेशन हुई थी, तो कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी आई थी, उसका नाम था देवू कॉर्पोरेशन. आज देवू कॉर्पोरेशन का चेयरमैन किंग वोंग चू जेल में है, 20 साल की जेल काट रहा है, और देवू कॉर्पोरेशन का नामो निशान मिट चुका है. याद करो अपने बचपन का टाइम जब लोग कहते थे इसकी जीरोक्स कॉपी करा दो. जीरोक्स बहुत बड़ी एक कंपनी होती थी, बहुत बड़ी जर्मन की कंपनी होती थी. आज जीरोक्स का नाम मिट चुका है, खत्म हो चुका है. जब छोटे बच्चे थे तो एक फोटो खिंचवाते थे तो कहते थे कोडैक मूवमेंट. कोडैक का नाम आप सबने सुना होगा, कोडैक. आज कोडैक कहाँ है मुझे नहीं पता, ना आपको पता है. ये तो मैंने आपको इंटरनेशनल एग्जांपल्स दिए. उसी तरह मैं अगर इंडिया के अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स देने शुरू करूं, तो
इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स हैं। कंपनियां आई, कंपनियां गई, एक डीएनए के नाम से न्यूज़पेपर आया, वो गया। हर साल आपको शायद ये नहीं पता कि कितने पब्लिकेशंस बनती हैं, पर ये जरूर पता होता होगा, ये नहीं पता होता होगा कि कितनी बंद होती। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, अभी तक मैंने क्लास शुरू नहीं करी, मैं सिर्फ एक भूमिका बांध रहा हूँ, और भूमिका में अगले सेशन में भी 10 मिनट की बांधूंगा। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज every newspaper needs a strong financial revenue generating model। और न्यूज़पेपर ही क्यों, हर बिजनेस की बात है। हर बिजनेस अल्टीमेटली बिना